give you an idea of how we do the classes here. And we are going to study this topic logarithms from very basics, okay? You all know that logarithms, it comes under algebra. Usually, this is not the first topic that we teach in our algebra classes. We start with linear equations, then we go to quadratic equations, then we go to inequalities, then we go to maxima minima, and then we come to logarithms, okay? But I will try to explain this topic to you. Um, can you just write down whether you've gone through logarithms already? Those who have done logarithms earlier, they can write done, and those who have not gone through logarithms ever, they can write not done, okay? Okay, yes, you have not done. Palak has done, okay. Others, not done, okay. So we have a couple of students who have not gone through logarithms, okay? Fine. Okay, not done. Fine. Okay, so I'm going to start logarithms from the very basics. Pay attention. And whenever you have doubts, you can also speak in iQuanta classes, okay? Whenever you have any doubt, there's an option to raise your hand at the bottom of the screen, okay? You can click that and I'll let you speak. And apart from that, try to keep your mic mute at all times so that you don't disturb the class. And no need to type your doubt, okay? In case you're comfortable with speaking, you can also speak and ask your doubt. We are going to start with the topic logarithms, okay? It is of very high importance in all three exams. You must have gone through the syllabus of IPMAT, Indore, Rohtak, JIPMAT, okay? Logarithms is mainly helpful for Indore. Very, very important for Indore, IPMAT Indore. There's another exam, IPMAT Rohtak. It is not so important for Rohtak because they don't ask you logarithms that frequently, or even if they ask you very easy questions, okay? Not difficult ones. So Indore asks you some difficult to moderate, okay? I would say difficult, or mostly they are moderate questions. Fine. And when you talk about JIPMAT, there's another exam called JIPMAT. JIPMAT where they don't ask you logs. Okay. But still, I mean, I suppose that you guys are attempting Indore and you'll definitely be keeping IPMAT, Rohtak, JIPMAT as backup. So the best thing about IPMAT is the syllabus is common across all three exams, okay? And when you study for the most difficult exam in IPMAT category, that is IPMAT Indore, then when you prepare quants for IPMAT Indore, you're already done for Rohtak as well and JIPMAT as well. Okay. When you study for Indore, you mostly encounter difficult questions, deeper concepts, and that automatically prepares you for Rohtak as well. So no need to sit for Rohtak JIPMAT separately. Okay. I mean, whatever you study for Indore, quants, that will prepare you for Rohtak JIPMAT as well. You just have to check the PYQs of Rohtak and JIPMAT to get an idea, solve a good number of mocks because the exam pattern of Indore, Rohtak, JIPMAT is different. Okay, Indore is a low scoring exam. You all know that the cutoff of quants is very low every year, while Rohtak and JIPMAT, they are high scoring exams because questions are easy. In IPMAT, Rohtak and JIPMAT, questions are easy. Most of the students are able to solve more, and that is the reason it's a high scoring exam. Okay, so cutoff is high here, okay, in Rohtak JIPMAT. While if you talk about Indore, you'll easily clear the cutoff, okay, even at somewhere around say 170, 180, at a total of 170, 180, if your sectional cutoffs are clear. So Indore also has sectional cutoffs, okay, sectional cutoffs are there. But in Rohtak, there are no sectional cutoffs. In JIPMAT, we have very low sectional cutoffs, okay, almost everybody clears sectional cutoffs in JIPMAT. So this is it. So quants, if you prepare for Indore, you are prepared for all other exams as well. If you prepare verbal ability for Indore, you're kind of prepared for the verbal ability of Rohtak and JIPMAT, and whatever type of question that is different in Rohtak JIPMAT, when you go through PYQs and mocks, if you find that okay, this type of question I did not do while practicing for Indore, so that you have to separately practice for Rohtak JIPMAT. But as I said, the verbal of Indore will again be tougher than the verbal of Rohtak and JIPMAT. Verbal is basically reading comprehension, grammar, and vocabulary, all that, okay? When we talk about LR, logical reasoning, it is only there in Rohtak and JIPMAT. So Indore does not have a separate section for logical reasoning, okay? But Rohtak JIPMAT will have a separate section for logical reasoning. Again, logical reasoning is easy, okay? Not that tough. Also, Indore asks you data interpretation sets in quant MCQ section. I hope this is something that everybody knows about IPMAT. Yes or no? This everybody knows this much. Yes or no? Yes, sir. Okay.
So now let's get started with logarithms. What are logarithms? Uh, you all must have heard of linear equations, right? You must have heard of quadratic equations in earlier classes. You must have heard of trigonometric functions like sine x, cos x. है ना? You know all of this, isn't it? So, what is a linear equation in which we have degree 1? Suppose I write an equation x plus 3. Its degree is 1. Yes or no? Everybody knows what is degree? The highest power of the variable in an equation. So, linear equations have degree 1. If suppose I put a value x equal to 1 into this. If I put x equal to 1 in this, what will be the output of this? It will be 1 plus 3. That will be 4. If I put x equal to 2 here, then 2 plus 3 will give me 5. Yes or no? So we have linear functions which work like this. We have quadratic functions as well. So in mathematics, we have a thing called functions. Okay. When you study in lower classes, class 6, 7, 8, 9, 10, you simply call any algebraic expression as an equation. जैसे मैंने आपको बोला कि what is 2x plus 3? You'll simply say that it's an equation kind of है ना. 2x plus 3 equal to 10 is an equation. है ना. If I ask you guys कि x square plus 5x plus 6 equal to 0 क्या है, you will say a quadratic equation. But when we go to higher classes, when we go to 11th and 12th, we start calling them functions. So if I write down something like f of x, okay, equal to 2x plus 3. What do you see in 2x plus 3? 2x plus 3 is a linear equation, but it is equal to f of x. What is f of x? F of x is read as function of x. F of x को हम बोलते हैं function of x. What is f here? It is the name of the function. Okay? It is the name of the function. This x inside the bracket is the variable. It is the variable on which equation is dependent. Okay, what does that mean? It means that if you change the value of x in the function, the value of the function changes. Suppose I put f of 0, that means in the equation I have to put x equal to 0. So 2 into 0 plus 3, that gives you 3. If I ask you guys f of 1, that gives you 2 into 1 plus 3, that gives you 5. If I ask you guys f of 2, it will give you 2 into 2 plus 3, that gives you 7. So this basically is a function. A function has an input. So this x is my input. And whatever value we get after putting the value of variable in the function, that value is called output of the function. Yes or no? Is this clear to everyone? Is function clear to everyone? What is a function? A function is simply an expression in which you put an input, and for every input, every unique input, it gives you an output. Okay. If this is clear to you guys, then understanding logarithms will be even easier. But before getting into logs again, I'll take 2 minutes and ask you guys, do you know about sine x and cos x? Sine x, cos x, tan x, which are trigonometric ratios, yes or no? You know about them. If I say that fx is equal to sine x, that means my function is sine x. Okay. And for different values of x, suppose I say x is 0 degree, x is 30 degree, x is 45 degree, or x is 90 degree. When you put 0 or 30 or 45 or 90 degree in place of x, you get different values of sine x. Sine 0 is 0, sine 30 is half, sine 45 is 1 by root 2, sine 90 is 1. So again, basically these angles are your inputs in the trigonometric functions, and these are your outputs. So fx is a function named f. It is dependent upon the value of x, and if you change the value of x, you will get a different output every time. You put x equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree, every time you will get a different value of the entire function sine x. Okay, if this is clear to everyone, now let's understand about logs. Just the way I wrote fx equal to sine x as a trigonometric function, or if I just wrote fx equal to say 2x plus 3.
In the same way, logarithms are also functions and they are written like this. Log of x. In short, logarithm is written as log. Okay, just a second. Please do not write on the screen, okay? Fine. So, what is log? It's a it's a function. Is that clear to everyone? Now, if it is a Yes, sir. function, it will also give me different values of log x when I put different values of x. So, say if I put f of 1, I will get log 1. If I put x equal to 10, I'll get log 10. If I put x equal to 100, I'll get log 100. And log 1 will have a value, log 10 will have a value, log 100 will have a value. So just like other functions like linear function, quadratic function, log is also a function. अंडरस्टूड? इतनी चीज सबको क्लियर है पहले? Yes, sir. ठीक है. इफ आई इफ आई आस्क यू गाइज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि लॉगरिदम क्या होता है. लॉगरिदम इज रिटन एज लॉग ऑफ एक्स. इफ आई आस्क यू गाइज कि अगर मेरे पास एक फंक्शन होता एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो व्हाट ऑल वैल्यूज कैन एक्स टेक? आप x की जगह पे क्या क्या डाल सकते हो? इफ fx इज अ फंक्शन विच इज 1/x, what all values can x take and what all values can x not take? Yes, very correct, Akriti, Palak, and Siddhant. X cannot be 0 except x equal to 0. X can be any real number. It can be any number or any real number except 0. Or we can say, how do you represent the set of all real numbers? R. And from that, if you have to remove 0, because it cannot be 0, it is written like this. Now, this we again teach you when we teach you functions. Okay, I'm just teaching you logarithms, so don't be scared of this complex expression. Okay, you just know that in function x, if I give you 1/x and I ask you a question that what values can x not take, तो यू जस्ट सेट कि x 0 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है. तो ऐसे ही लॉगरिदम्स जो होते हैं उसके अंदर आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो. दिस x दैट यू पुट इन साइड लॉग, इट हैज सम सर्टन स्पेसिफिक वैल्यूज दैट यू कैन पुट इन साइड इट. ओके, तो हर फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ब्लाइंडली नहीं डाल सकते. उनकी भी अपनी एक लिमिट होती है कि आप उनमें क्या क्या डाल सकते हो. तो वैसे ही लॉगरिदम्स की भी अपनी लिमिट होती है. ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा आंख बंद करके लॉग ऑफ -100 निकालने लग गए. क्या पता -100 पे लॉग चलता ही ना हो. इजंट इट? जैसे फंक्शंस में आपको सिंपल सा समझा देता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल. आप अगर आपकी कार डीजल पे चलती है तो आप उसको पानी डाल के नहीं चला सकते अपना इंजन. योर इंजन ओनली वर्क्स व्हेन जब उसके अंदर कंबशन होता है, जब उसके अंदर फ्यूल जलता है, पावर जनरेट होती है. इजंट इट? यस और नो? सो Yes, हर sir. एक हर एक फंक्शन का अपना एक दायरा होता है, अपनी एक लिमिट होती है. उसके अंदर जो चीजें आप इंसर्ट कर रहे हो इनपुट्स, उनका भी अपना एक सेट होता है. ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो. तो ऐसे ही लॉगरिदम्स का क्या होता है? लॉगरिदम एक ऐसे फंक्शंस हैं जिनका अपना एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिन पे वो वर्क करते हैं. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं लॉग्स को और डिटेल में. लॉगरिदम को शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है. लॉग में दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं. एक होता है उसका आर्ग्यूमेंट और एक होता है उसका बेस. सो एवरी लॉग इज रिटन लाइक दिस: लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, जहां पे ए को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और बी को बोलते हैं बेस. ठीक है. अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस का क्या सीन है, मतलब ये क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट और बेस कुछ सर्टन वैल्यूज पे ही काम करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आप बेस को -50 लिख दोगे, ए को -100 लिख दोगे, कुछ भी वैल्यू डाल दी. तो हमेशा लॉग फंक्शन को काम करने के लिए आपका जो ए है वो भी ग्रेटर देन 0 की वैल्यू होनी चाहिए और बी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. सो लॉगरिथम फंक्शंस ओनली वर्क व्हेन द बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड द आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जैसे अभी मैंने आपको 1/x का एग्जांपल दिया था. 1/x कब वैल्यू देगा आपको डिफाइंड? जब x 0 नहीं होगा.
अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि जैसे मैं आपसे एक और पूछता हूँ कि एक फंक्शन है मेरा रूट एक्स, एक्स के अंदर क्या क्या वैल्यू जा सकती है और क्या क्या वैल्यू नहीं जा सकती है? All positive value. यस, एक्स के अंदर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज या इक्वल टू जीरो वैल्यूज जा सकती हैं। इट कैन ओनली टेक जीरो और एनी वैल्यू ग्रेटर देन दैट। जैसे ही आप एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दोगे रूट के अंदर, सपोज आप रूट ऑफ Iota. -4 निकल लग गए, तो आपको इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर कब ये फंक्शन नहीं चलेगा? जब आप एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल दोगे। तो आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्यों लॉगरिदम के आर्ग्यूमेंट और बेस के बारे में बार बार ये बोल रहा हूं कि लॉगरिदम ऐसा नहीं होता कि किसी भी रैंडम सेट ऑफ वैल्यूज पे चल जाता है। ठीक है, उसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है और बेस होता है, उनकी वैल्यूज की अपनी एक लिमिट होती है और उन्हीं वैल्यूज पे वो चलता है फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया था कि अ कार कैन नॉट रन ऑन पेट्रोल। ओके, सिमिलरली लाइक दैट, लॉग भी एक काइंड ऑफ इंजन है, एक काइंड ऑफ फंक्शन है जो ए की वैल्यू तभी चलेगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है पहले कि लॉग कब चलता है, लॉग के अंदर क्या क्या वैल्यूज जा सकती हैं? ये क्लियर है Yes, सबको? पहले sir. बताओ। ठीक है, Yes, sir. अब इस लॉग का यूज क्या है रियल लाइफ में? जनरली लॉग का यूज होता है जब हमारे पास बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशंस होती हैं। और अभी मैं अगर आपको सीधा ये स्टेटमेंट दे दूं कि लॉग बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल की कैलकुलेशंस होती है उनमें यूज होता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज आपको जानना है कि कैसे लॉग हाई लेवल की कैलकुलेशंस में यूज होता है, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेंगी लॉग्स की प्रॉपर्टीज। ओके, जैसे जब आप ट्राइंगल्स पढ़ते हो, है ना, यू स्टडी ट्राइंगल्स और सर्कल्स इन मैथमेटिक्स, इन ज्योमेट्री। सो यू आर टोल्ड एवरी टाइम कि ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, उसके ये एंगल होते हैं, उसके सम ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इजंट इट? यू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू सॉल्व ऑल द ट्राइंगल्स क्वेश्चंस। तो जस्ट लाइक दैट इन लॉग्स वी हैव अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके लॉग्स के क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या है लॉग्स को करने का? दूसरा फायदा है लॉग्स को करने का ये कि देखो, लॉग्स एक हमेशा स्कोरिंग चैप्टर रहा है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज को लगा करके सॉल्व हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेकंड, लॉगरिदम जो होता है वो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि आप बिना प्रॉपर्टीज के करो उनको। आप हमेशा देखोगे कि प्रॉपर्टीज के थ्रू ही वो क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसके क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में डुएबल होते हैं। अभी हम पास्ट पास्ट ईयर पेपर्स भी करेंगे कुछ, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट अभी चलते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज पे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉग होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस, ए एंड, एक होता है बेस, इसका ए होता है आर्ग्यूमेंट, बी होता है बेस। और लॉग्स तभी काम करेगा करेगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब पहली प्रॉपर्टी है द एडिशन प्रॉपर्टी, इसको एडिशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, विच सेज दैट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो हमारी प्रॉपर्टी में सिंपली लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। क्या आपको यहाँ पे कोई बेस दिख रहा है लॉग के नीचे? यू कैनॉट सी द बेस, राइट? जैसे लॉग का हमेशा एक बेस होना चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट तो आपके सामने है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए बी है। बट डू यू सी द बेस? यू डोंट सी द बेस, राइट? यस और नो? No, sir. ठीक है, सो वेन एवर लॉग सिंपली लिखा हुआ है, अगर लॉग आपका कोई बेस नहीं मेंशन्ड है, तो द बेस इज 10 बाई डिफॉल्ट। तो लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है। अगर सिंपली लॉग लिखा हुआ है इसका मतलब उसका बेस 10 है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी विल ऑलवेज बी log ए इंटू बी। बट ये प्रॉपर्टी कब चलती है? जब आपका बेस सेम होगा दोनों Same. चीजों में। ऐसा नहीं कि अभी देखो यहाँ दोनों जगह बेस सेम था ना, 10 10, और यहाँ भी बेस 10 आया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप log ऑफ ए में बेस 5 कर दो और log ऑफ बी में बेस 6 कर दो, और फिर यहाँ पे आप log के अंदर का ए और बी, सॉरी दिस इज बी, ओके, ए बी मल्टीप्लाई भी कर दो और बेस ऐसे ही। जब तक ये दोनों बेस सेम नहीं होंगे तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तभी ये प्रॉपर्टी चलती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अगर कभी Sir, आपको लॉग, यस, अगर जैसे आपका sir, लॉग्स, यस, sir, I'm having one doubt. यस, Actually, as you told that ki base one,
it should be greater than 0, पर हम्म base 1 नहीं हो सकता ना, right? यस, बेस कैन नॉट बी वन, आई एम कमिंग टू दैट प्रॉपर्टी एज वेल, ओके। I'm sorry. यस, ठीक है। सो सपोज यू बीन गिवन log 6, आप log 6 को कैसे लिख सकते हो? log ऑफ 2 इंटू 3, एंड नाउ यू कैन सेपरेट इट लाइक दिस एज वेल, log 2 प्लस log 3। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको log 2 प्लस log 3 दिया हुआ है तो आप उसको log 6 भी लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर है सबको, यस और नो? द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ log इज log a minus log b कैन बी रिटन एज log of a by b, एंड दिस ऑल्सो वर्क्स when the base is same. Understood? Yes, sir. The third property of log is this, which is lowering down the पावर। पावर को कम करने के भी काम आता है लॉग। अगर आपने मैथमेटिक्स में किसी चीज की पावर कम कर दी, तो यानी कि आपने उस नंबर का मैग्नीट्यूड कम कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 14 की पावर 78, अगर मैं इसकी पावर कम कर दूंगा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने नंबर ही रिड्यूस कर दिया? यस और नो? इफ यू रिड्यूस द पावर, तो आप नंबर को कम कर दोगे। अब 14 की पावर 78 को कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं है ना। इट टेक्स अ वाइल टू कैलकुलेट ह्यूज नंबर्स लाइक द वैल्यू ऑफ ह्यूज नंबर्स लाइक 14 की पावर 78। सो लॉग्स आर वन सच फंक्शंस which also help you reduce difficult calculations and high power calculations। कैसे? अगर आप कभी भी लॉग लेते हो किसी पावर का, जैसे कि लिखा हुआ है a की पावर x, यानी कि एक आपका नंबर है जो पावर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लॉग क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके? इट ब्रिंग्स द पावर इन फ्रंट, एंड you will get x into log of a. So log basically helps you reduce the power as well. Yes or no? Is this clear to everyone? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो दो चीजें, कि log का अगर बेस नहीं लिखा है तो वो 10 होता है बाय डिफॉल्ट, एंड दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ log, और ये दोनों प्रॉपर्टीज ऊपर वाली तभी काम करती हैं जब log का बेस सेम होता है। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log, विच इज log of a to the base b. How do you read any log? सिंपल लॉग्स आर रेड एज log ऑफ a टू द बेस b। तो अगर log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज log ऑफ a फर्स्ट अपॉन log ऑफ b। नाउ व्हाट हैपेंड हियर? earlier Base your changing base was, theorem. yes, this is change of base। the base earlier was b, now the base is 10, because log में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है बेस, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो 10 है। तो earlier the base was b, now the base has become 10। क्लियर? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next property, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर n। अगर आपको कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 3 की पावर 87 में कितनी डिजिट्स होंगी, 3 की पावर 87 विल बी अ ह्यूज नंबर, इट विल हैव अ लॉट ऑफ डिजिट्स, यस और नो? इफ दे आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 87, व्हाट यू हैव टू डू इज you simply have to take the log of the given number, that means you will take log of 3 की पावर 87, okay, and add 1 to it, and then put a square bracket around it. This square bracket simply means you have to calculate the integer part of the value inside. Okay, अभी हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट दिस इज वन सच प्रॉपर्टी जिससे पास्ट आईपी मैट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी ह्यूज नंबर लाइक दिस। इज इट क्लियर? अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। फाइन। नेक्स्ट वी कम टू द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग। जैसे sin 30, sin 45, sin 60 आपको बचपन में रटा दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। वाई? बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड एंगल्स। जैसे उनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, लॉग में भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, जिनमें सबसे पहले आएगा log 1। log 1 इज ऑलवेज 0। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes. अब एक चीज ध्यान में रख लेना कि log 1 लिखा है तो इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 होगा। तो log 1 इज 0 एज वेल एज log 1 टू एनी बेस। आपका बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा 0 ही रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ log 1 टू द बेस 3 क्या होगा, आप बोलोगे 0। अगर मैं आपसे पूछूंगा log 1 टू द बेस 6, आप बोलोगे 0। तो log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही log 10 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? इसको हम प्रॉपर्टी से निकालते हैं। log 10 लिखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 होगा।
और थोड़ी देर पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग ए टू द बेस बी इज लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो क्या मैं log 10 बेस 10 को log 10 अपॉन log 10 लिख सकता हूँ? log 10 कैंसिल, आई गेट 1। दैट इज वाई log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है। इज इट क्लियर? यस और नो? Now we come to say if I want to calculate log of 100, log of 100 can be written as log of 10 स्क्वायर। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी कि log के अंदर अगर कोई पावर वाली चीज चली जाती है तो log उसकी पावर पुल करके आगे ले आता है। तो log 10 स्क्वायर है तो इसकी पावर पुल होके आगे आ जाएगी, दैट मीन्स 2 इंटू log 10। और log 10 की वैल्यू आपने अभी भी देखी है कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 100 की वैल्यू आती है 2। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं विच इज अबाउट लॉग, दैट इज अगर आपको लॉग ए दिया हुआ है टू द बेस बी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लॉग ओनली एग्जिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। बट आई एम एडिंग वन मोर पॉइंट टू इट कि बेस आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता लॉग का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपका बेस 1 कर देता हूं सपोज, ठीक है, तो क्या लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ए बाई लॉग 1। यस और नो? यस और नो? लॉग ए तो लॉग ए ही रहेगा लेकिन log 1 नीचे 0 हो जाएगा। दिस बिकम्स अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 0 विच इज अनडिफाइंड। यस और नो? किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, अगर हो गया तो वो अनडिफाइंड बन जाती है। इसीलिए आपका log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन log ओनली एग्जिस्ट ऑन दीज प्रॉपर्टीज, ऑन दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि log का बेस कभी 1 क्यों नहीं हो सकता? यस सर। ठीक है। एक और चीज लॉग में आपको कई बार देखने को मिलेगी, दैट इज नेचुरल लॉग। अब ये नेचुरल लॉग क्या होता है? जब किसी लॉग का बेस 10 होता है तो उसको बोला जाता है कॉमन लॉग, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। बट अगर किसी लॉग का बेस ई होता है, व्हाट इज ई? ई इज अ कांस्टेंट। ओके, ई जो होता है वो आपका एक कांस्टेंट होता है एंड इट्स वैल्यू इज 2.71। अब हमको इस चीज में नहीं जाना है आगे कि भाई नेचुरल लॉग का यूज क्या होता है। नेचुरल लॉग भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, बट वी डोंट केयर अबाउट इट दैट मच, बिकॉज हमें लॉग भी अगर पता है बेस 10 वाला तो भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं विद दीज प्रॉपर्टीज। जब भी लॉग का बेस ई हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया लॉग ई बेस पे एक्स, तो ये जो ई बेस जिसका होता है उस लॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन एक्स, एंड एल एन को ही बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो कभी भी अगर एल एन एक्स लिखा हुआ है उसका मतलब है लॉग एक्स टू द बेस ई होता है नेचुरल लॉग का, जहां पे ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। क्या ये सबको क्लियर है कि नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग इज रिप्रेजेंटेड विद एल एन एक्स, उसका बेस होता है ई। और कॉमन लॉग क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया लॉग एक्स बेस 10, तो अगर बेस किसी लॉग का 10 है इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए की पावर लॉग बी इज इक्वल टू बी की पावर लॉग ए। आपको दिया है ए की पावर लॉग बी इक्वल टू बी की पावर लॉग ए। हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये दोनों सेम है? अगर आप दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हो, इसका भी लॉग ले लो और इसका भी आप लॉग ले लो, ठीक है। अगर मैं ए की पावर लॉग बी का लॉग ले लूंगा तो ये पावर में है, पावर कम्स इन फ्रंट, व्हाट डू आई गेट? लॉग बी इनटू आई विल रिमेन विद लॉग ए। एंड हियर इफ आई टेक लॉग ऑफ बी की पावर लॉग ए इज इन पावर, ये आगे आ जाएगा, दैट मीन्स लॉग ए इंटू व्हाट विल बी लेफ्ट विद लॉग बी। सो लॉग बी, log a into log b, log a into log b, LHS is equal to RHS, and that is why a की पावर log b is equal to b की पावर log a। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो हर साल आईबीएमएट में यूज होती है और हर क्वेश्चन में आपको दिखती है, दैट इज ए की पावर log x बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। a की पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? अगेन आप चाहो तो इसका भी लॉग ले लो और इसका भी लॉग ले लो। अगर आप इसका लॉग लोगे तो ए की पावर समथिंग है, पावर हमेशा आगे आ जाती है, व्हाट विल यू गेट? लॉग एक्स बेस ए इंटू लॉग ए, यही मिलेगा आपको यस और नो इसका लॉग लेने पे? हाँ या ना?
and this should be equal to log x. Yes or no? Yes, sir. Yeah. Now, log x base a can be written as log x by log a. This log x base a can be written as log x by log a into log a. And this is equal to log x. A goes, log x is equal to log x, hence proved. LHS equal to RHS. And that is the reason this property is very, very useful, very, very important. अभी हम जब आगे जा करके आपका सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस आईपी मैट के PYQs, you'll see this property, okay? A की पावर log x to the base a is always equal to x. आई होप इतना सबको क्लियर है कि लॉग क्या है। लॉग एक फंक्शन है, कब वो वैल्यूज देता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग्स भी आपको पता है। यू नो सम प्रॉपर्टीज नाउ, ओके? आई थिंक विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ, इजंट इट? इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दैट इज ग्राफ ऑफ लॉग, ओके? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपका जब आप आईपी मैट का पेपर दोगे वो आपसे बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, x इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसे दे देगा, बोलेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल करने से बढ़िया है। अब देखो x इक्वल टू लॉग एक्स हाउ मेनी सॉल्यूशन, यानी कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिनके लिए x इक्वल टू लॉग एक्स होगा। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 1 2 3 0 -1 सब चला देते हैं, बट दे आर नेवर श्योर कि भाई मेरे आंसर आया करेक्ट है या नहीं है। ऐसे केसेस में आपको एक चीज हेल्प करती है, विच इज ग्राफ ऑफ लॉग, ठीक है? अब ग्राफ ऑफ लॉग यहाँ कैसे हेल्प करेगा? आपको एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और एक्स का ग्राफ क्या होता है ये, और लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है? लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये सुनो, तो कई बार आपको ग्राफ ड्रॉ करके कितनी बार चीज़ों का ग्राफ कट कर रहा है ये करके भी सॉल्यूशन मिल जाता है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ a chapter that we do later in IP Math called integral solutions या solutions, number of solutions। ये हम आगे करते हैं, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू द ग्राफ ऑफ लॉग एटलीस्ट। तो ग्राफ ऑफ लॉग प्लीज याद रख लो, आपको बहुत आसानी पड़ेगी। ग्राफ ऑफ लॉग कुछ ऐसा होता है। सबको पता है कि ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव। देखो मैं आईपी मैट लेवल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आई नो दैट मैनी ऑफ यू माइट हैव डन लॉगरिदम्स अर्लियर, या किसी ने बेसिक क्लासेस में किया होगा या किसी और एग्जाम के लिए किया होगा। बट व्हेन यू स्टडी फॉर आईपी मैट इंदौर यू कैनॉट जस्ट डील विद द बेसिक स्टफ, ओके? बेसिक तो पढ़ना ही है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है, बट जितना जल्दी हम और डेप्थ में जाएंगे कंसेप्ट में, जितना कंसेप्ट हमको पता होता है, जितने केसेस हमको पता होते हैं किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के अराउंड, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि हम उतनी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो हमें पता है या कोई ना कोई चीज़ जो हमें पता है वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करी जाती है, ठीक है? इसलिए आईपीमेट इंदौर के लिए डेप्थ में पढ़ना चाहिए, अच्छे लेवल का स्टफ पढ़ना चाहिए। नाउ दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई, इतना सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अब आपका जो ये ग्राफ होता है इसको ध्यान से समझ लेना पहले तो, ठीक है? पहली बात ये है आपका लॉग एक्स का ग्राफ, जिसको हम लिखते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स, बिकॉज देखो जब भी आपसे सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक सबने पढ़ी हुई है, सबको लाइन ड्रॉ करनी आती है कार्टेशियन प्लेन पे सबको, यस और नो? Yes, sir. तो जब लाइन की इक्वेशन आपको दी जाती है तो ऐसे लिखा जाता है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसको ड्रॉ करो। तो आप क्या करते हो, x को 0, फिर y की वैल्यू आती है, y को 0, x की वैल्यू आती है, एंड देन आप दो कोऑर्डिनेट्स बनाते हो और लाइन खींच देते हो, यस और नो? ऐसे ही करते हो ना आप? तो हमेशा जब भी आपको किसी लाइन, अब लाइन क्या है, x+4, इसको हमेशा y के इक्विवेलेंट लिया जाता है, बिकॉज कार्टेशियन प्लेन पे, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जब आप एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक तो x की साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमेशा अगर मैं अपना log x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो दैट इज टेकन एज y इक्वल टू लॉग एक्स। अब इस ग्राफ को देखना, ये जो आपका ग्राफ है, ये कहाँ टकरा रहा है आकर के? इट इज कमिंग टू दिस एक्सिस, यस और नो? एक्स एक्सिस, यस और नो? दिस ग्राफ ऑफ log x इज कटिंग द एक्स एक्सिस, यस और नो? Yes, sir. एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है? 0. 0. जीरो होती है। तो इस वाई कोऑर्डिनेट को जीरो हो जाना चाहिए इस पॉइंट पे,
यानी कि जीरो होना चाहिए किसको, वाई लॉग एक्स को। और लॉग एक्स जीरो कब होता है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे, 1. 1 पे। one. यानी कि आपका y है 0, x है 1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज 1, y इज 0। यानी कि log x का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को कट करता है एट पॉइंट 1,0। यस और नो? Yes, sir. करेक्ट। एक और चीज याद रखना, दीज टू लाइंस दे नेवर मीट। ये दोनों लाइंस कभी मिलती नहीं है आपस में। ये दो लाइंस का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो log x का ग्राफ है और y एक्सिस है, ये दोनों कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट। दे गो क्लोजर एंड क्लोजर बट दे नेवर मीट। और इसका भी अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है कि ये दोनों मिलते क्यों नहीं है। अब ये दोनों क्यों नहीं मिलते हैं ये भी समझाता हूँ पहले तो। और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ कि ये जो log x का ग्राफ है ये आपको कहाँ दिख रहा है, इट इज विजिबल टू यू ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। यस नो? आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है log x का, ये जो येलो वाला ये कर्व है, ये आपको राइट साइड ऑफ y एक्सिस में दिख रहा है। यस नो? Yes, Yes. sir. y एक्सिस के राइट साइड में जो x की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव या क्या नेगेटिव या क्या होती हैं? Positive, sir, for Y. Positive. दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि x की वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x हमेशा पॉजिटिव होता है y की राइट साइड में। और अगर ये ग्राफ log x का सिर्फ राइट साइड ऑफ y एक्सिस में ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है, x की पॉजिटिव वैल्यूज, एंड दैट इज द रीजन। थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना कि log a बेस b या a हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, वो इसीलिए होता है। log x का x जो होता है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है, क्योंकि log x का जो ग्राफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा राइट साइड ऑफ y एक्सिस में बनता है, और राइट साइड ऑफ y एक्सिस में हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव होती है x की। पॉजिटिव होती है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर y एक्सिस की राइट साइड में तो जीरो भी होता है, तो क्यों ये जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा, यानी कि जो a है वो जीरो क्यों नहीं हो सकता कभी? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये दोनों ग्राफ कभी नहीं मिलते हैं, बताया ना मैंने आपको। द ग्राफ ऑफ log x एंड ये y एक्सिस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे नेवर मीट। अगर ये मिल जाएंगे गलती से, अगर ये मिल गए ना कहीं जा करके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे पहुंच गए हो आप। और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, x या y? X. x जीरो होता है y कोऑर्डिनेट। आप y कोऑर्डिनेट पे कोई भी वैल्यू ले लो, 1,0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, है ना। हमेशा y एक्सिस पे क्या होता है, एग्जैक्टली y एक्सिस पे x हमेशा जीरो होता है। अगर ये दोनों गलती से इंटरसेक्ट कर गए, मिल गए आपस में, तो आपको x की वैल्यू जीरो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ आपका y एक्सिस से जाके मिल चुका है, और y एक्सिस से मिल गया यानी कि x को जीरो लिया जा सकता है। और x को जीरो ले लोगे तो फिर log नहीं चलेगा। इसीलिए log का जो ग्राफ होता है ये कभी y एक्सिस से नहीं मिलता है। क्या ग्राफ सबको क्लियर है? एंड इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि जो log x होता है उसका ये जो a होता है ये हमेशा पॉजिटिव इसीलिए होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, आपको log को ये बिल्कुल। लोकेशन वाला पार्ट रिपीट कर दो। कौन सा वाला? y की वैल्यू हम लोग ने जो करी थी और उसको रिलेट किया था ग्राफ से। पहले तो मैंने आपका ग्राफ ड्रॉ कर दिया सीधा, फिर मैंने आपको क्या बोला कि ये जो है 1,0, एक सेकेंड ना, ये आपको 1,0 मिल रहा है, ये क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स से इसको कैसे रिलेट किया मैंने। अगर आप x को 1 डालोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले x लिखा जाता है कार्टेशियन प्लेन में हमेशा, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो x को 1 डालोगे तो क्या आएगा, log 1। तो y विल बी इक्वल टू log 1 होता है जीरो, इसलिए y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू 1। ये सुनो। और आपका जो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है वो कहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये वैल्यूज कौन सी होंगी, 1,0, बिकॉज अगर आपका ग्राफ log x का x एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस पे क्या होता है, y जीरो, तो y जीरो कब होता है, जब x 1 होता है। इसीलिए पॉइंट है 1,0। पहली चीज। दूसरा, मैंने बताया कि ये दोनों ग्राफ कभी मिलते नहीं है, और log x का ग्राफ हमेशा राइट साइड ऑफ y एक्सिस में रहता है। राइट साइड ऑफ y एक्सिस में x हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव x वाली साइड में ही ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब पक्का उसमें पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x चल रही होंगी, इसीलिए तो वो ऐसे ड्रॉ हो पा रहा होगा, है ना। हाँ। अगर वो नेगेटिव x में इसलिए नहीं ड्रॉ हो पा रहा बिकॉज नेगेटिव x की वैल्यू जा ही नहीं सकती उस कर्व के अंदर, अगर जा रही होती तो यहां भी ड्रॉ हो रहा होता। ठीक है। तीसरी चीज मैंने बताया कि दे नेवर मीट बिकॉज
अगर आपका log x का ग्राफ y एक्सिस से जाके मिल गया तो y एक्सिस से मिलना मतलब y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। अगर x 0 हो गया तो आपको उस x 0 को इस log के अंदर डालना पड़ेगा, और log 0 अनडिफाइंड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, और b कभी 1 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? यस सर। दिस इज द, आई मीन इससे ज़्यादा लॉग्स, अगर आप, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं लॉग्स, मतलब इतना अगर किसी ने पढ़ लिया तो भाई वो इंदौर के उसके कंसेप्ट ग्राफ के रेडी हैं। अब बस उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेट्स प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। इफ log सर 2 इज गिवन, आंसर 30। ओके, इफ log 2 इज दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 99। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर मिल गया उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। टेक log ऑफ दैट नंबर, ऐड 1 टू इट एंड टेक इंटीजर पार्ट ऑफ इट। तो आप क्या करोगे, log लोगे 2 की पावर 99 का, उसमें 1 ऐड करोगे, और इसका आप इंटीजर पार्ट ले लोगे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनका मतलब होता है कि इनका इंटीजर पार्ट ले लो। ठीक है। log 2 की पावर 99 को कैसे लिखोगे बताओ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log। 99 आगे जाएगा। 99 आगे आ जाता है log की प्रॉपर्टी यूज करके, तो 99 इंटू log 2 प्लस 1। 99 इंटू log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.301 प्लस 1। 99 इंटू 301 होता है 29 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस, 29.801997। ठीक है। तो दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू ऐड करके आएगा 30 पॉइंट समथिंग। 30 पॉइंट समथिंग में ये पार्ट जो है ये फ्रैक्शनल है, बिकॉज ये डेसिमल में आ रहा है पॉइंट के बाद। इससे आगे वाला पार्ट कंप्लीटली इंटीजर पार्ट है, तो इसकी वैल्यू जो अप्रॉक्स आएगी वो लेंगे। 30 आ जाएगी। ठीक है। नॉट अप्रॉक्स, अप्रॉक्स नहीं लोगे आप, इसका इंटीजर पार्ट लोगे। अगर यहाँ 30.98 आ जाएगा ना, फिर भी आप 30 ही बोलोगे। ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ, तो देर इज अ यस। डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर पार्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट में आप क्या करते हो, राउंड ऑफ करते हो, राइट? तो राउंड ऑफ मत करना, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है जो अंदर आएगा। ये सबको क्लियर है, पहले बताओ। Yes, sir. यस सर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आईपी में 2024 में आया है जो मुझे लगता है आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, लेट्स ओपन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड। ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, Yes, दिस sir. इज योर, दिस इज आईपी मैट इंदौर 2024 पेपर। ओके, पिछले साल का। द नंबर 2 की पावर 2024 एंड 5 की पावर 2024 आर एक्सपेंडेड एंड their डिजिट्स आर रिटन आउट consecutively ऑन वन पेज। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिटन ऑन द पेज। तो कह रहा है पहले 2 की पावर 2024 को खोला और उसकी सारी डिजिट्स लिख दी, फिर जस्ट उसके बाद क्या किया, 5 की पावर 2024 को ओपन किया और फिर उसकी डिजिट सारी लिख दी। तो एक पूरा पेज ऐसे भर जाएगा isn't it, डिजिट से। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो लिखी गई पूरे पेज पे वो कितनी है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 2024 and then you will count the number of digits in 5 की पावर 2024 and you will finally add them both and you will get your answer। yes or no? यही तो होगा, ऐसा ही होगा। अब Yes. 2 की पावर 2024 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगी बताओ। इसका लॉग लोगे प्लस 1 करोगे और उसका इंटीजर पार्ट ले लोगे, तो लॉग ऑफ 2 की पावर 2024 प्लस 1, ये आएंगी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 2024। देन इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस, सो लॉग ऑफ 5 की पावर 2024 प्लस 1। सो 2024 log 2 plus 1 and 2024 into log 5 plus 1। ये सुनो, हाँ sir. Sure, अब sir. log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू यू नो ऑल ऑफ यू 0.301 प्लस 1, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 5। अब log 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, log 5 को आप लिख सकते हो log ऑफ 10/2 एंड log a by b कैन बी रिटन एज log a
माइनस लॉग बी। लॉग 10 होता है 1, लॉग 2 होता है 0.301, सो दिस विल बी 0.699। तो लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699। सो 2024 इंटू 0.699 प्लस 1। अब आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट ब्रैकेट की। 2024 प्लस 2024 इंटू 0.301 प्लस 1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। You can use calculator as well. Okay, so you all know that in Indore we have an on-screen calculator on the top. वो actually ऐसे questions के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है। तो smartly use calculator when you have such complex calculations in Indore. What is the value of this first bracket? 610.224. 610 point something something, that means, है ना। और Yes. इसका क्या आ रहा है 2024 इंटू 0.699 का प्लस 1। 1415. 1415 point something। अब 610 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट क्या है 610। 1415 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट क्या है 1415। आप इन दोनों को ऐड करवाएगा आपका 2025 एंड दैट इज योर आंसर एज वेल। इजी क्वेश्चन था, आईपी मेट इंदौर में आया था 2024। सर यस। सर आपने log 2 की वैल्यू कैसे निकाली? लॉग 2 की वैल्यू दी थी ना हमें अभी पिछले क्वेश्चन में 0.301। अच्छा सो वन मोर टिप you should all remember some log basic values. Okay, log 1 you all know is 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, log 3 की वैल्यू होती है आई थिंक 0.477 समथिंग, log 4 की वैल्यू होती है, log 4 को क्या लिख सकते हो log 2 स्क्वायर, सो 2 इंटू log 2 दैट मीन्स 0.602। सर, log इफ यू हैव 5, कैलकुलेटर देयर अलाउड तो log की वैल्यू उधर भी निकाल सकते ना, राइट? लेकिन log का आपको log 3 निकालने नहीं देगा वो। इट्स अ बेसिक कैलकुलेटर। ओके, इट डज नॉट ओके हैव ओके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक log। ओके, ओके तो log 5 होता है 0.699, ठीक है। ऐसे ही log 6 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। 6 को क्या लिख दोगे 2 2 into इंटू 3। देन log की प्रॉपर्टी यूज करो log 2 प्लस log 3। log 2 प्लस log 3 ऐड कर दोगे तो आपको log 6 की वैल्यू मिल जाएगी, log 7, हाँ 6 की वैल्यू। तो log 1 से लेके log 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, log 8 विल बी 4 log 2 into क्यूब। 4. यू कैन डू 4 इंटू 4 नहीं 2 इंटू 4 करो, या तो log 8 को लिख दो 2 क्यूब, 3 आगे आ जाएगा 3 इंटू log 2, 3 इंटू 0.301 दैट मीन्स 0.903। ठीक है, हो गया log का क्वेश्चन एक। Yes sir. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू, अगर आप आईपी में 2025 का क्वेश्चन भी करना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने अभी आपको 24 का क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब मैं आपको 25 का एक क्वेश्चन कराता हूँ लॉग्स का। देखो लिखा है ना पेपर में, आपको दिख रहा है एल एन एल एन एल एन लिख रहा है सबको। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल लॉग। ओके, क्लियर। somebody has opened their mic. Okay, it's disturbing. Himanshu, please keep your mic on mute. Okay, ठीक है। Let's try to solve a logarithm का question that came this year. इस बार तो बहुत इजी लॉग के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आता है क्या? नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है लॉग भर भर के आया इस बार। एक क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, फिर ये एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे देखो, चलो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी। एक इजी क्वेश्चन करते हैं लॉग्स का। आई थिंक वो 2024 में ही आया था, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसके अराउंड। द क्वेश्चन इज, तो लॉग्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लॉग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है कि ए है ये, ठीक है, कुछ दिया हुआ है log 4 बेस 7। यहाँ बेस अलग से लिखा हुआ है 7, सो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट। देन द वैल्यू ऑफ दिस,
अब आपको क्या दिया है देखो, log 4 base 7, एक ब्रैकेट के अंदर फिर क्या दिया हुआ है, log 5 base 7 माइनस log 2 base 7. सो इजंट दिस log a माइनस log b एट base 7? यस और नो? तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, बट log 5 माइनस log 2 विल बी रिटर्न एज व्हाट, log base 7 and 5/2. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In the denominator, log 7 25 लिखा है, क्या आप 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो, और 5 स्क्वायर लिखोगे तो 2 आगे चले जाएगा, इजंट इट? व्हाट विल बी रिमेन विद 2 log base 7, और यहाँ आ जाएगा 5. यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये तो बहुत बेसिक चीज आप कर लोगे, है ना? 5 स्क्वायर यहाँ लिखा है तो 2 आगे चले जाएगा, log 5 base 7 यहाँ बच जाएगा. इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, log 8 base 7 माइनस log 4 base 7. लॉग ए माइनस लॉग बी, तो log 8 माइनस log 4 क्या हो जाएगा, log 8/4, यानी कि log 2 base 7. अंडरस्टूड? सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस अब सर। यहाँ इस 4 को 2 स्क्वायर लिखोगे तो 2 आगे चले जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा. आया ना? 2 से 2 कट जाएगा, log 2 base 7 से log 2 base 7 कट जाएगा. आया ना? ये सुनो. यस सर। अब आपके पास क्या बचा हुआ है देखो, log 7 5/2 बचा हुआ है यहाँ पर, और नीचे क्या बचा हुआ है, log 7 5 बचा हुआ है. क्या मैं ऊपर log 5/2 base 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, log 5/2 अपॉन log 7, ये आपका न्यूमरेटर में हो गया, और log 5 base 7 को लिख सकता हूँ log 5/log 7. यस और नो? नाउ log 7 से log 7 चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, log 5/2 अपॉन log 5. यस और नो? पहले मैंने यहाँ चेंज ऑफ बेस किया, log 5/2 अपॉन 7 लिखा, तो log मैंने बेस चेंज कर दिया ना, 7 से 10 कर दिया बेस. इन log में आपको कोई बेस नहीं दिख रहा है तो 10 है बाई डिफॉल्ट. हाँ या ना? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है. यस Yes, सर। sir. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि log a अपॉन log b को क्या लिख सकते हो, log a/b. यस और नो? log a base b. तो log यस 5/2 सर। अपॉन log 5 को क्या लिख सकते हो, log of 5/2 base 5. यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन बॉइल डाउन होकर के ये बन जा रहा है, log 5/2 base 5. आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 की पावर a की. तो 5 की पावर, व्हाट इज ए इज दिस, 5 की पावर log 5 5/2. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a की पावर log x base a क्या होता है, x. तो बेस यहाँ भी a है और यहाँ log का बेस भी है, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी log का बेस 5 है. तो इसको अगर आप x ले लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो आपका आंसर x आना चाहिए, और वो है क्या अंदर 5/2. एंड दैट्स वाई 5/2 इज द करेक्ट आंसर. सर जस्ट लास्ट सेक. प्रॉपर्टी जो आपने यूज किया वो समझा नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग ए कुछ तो था ना अभी लास्ट में आपने यूज किया। a की पावर log a बेस पे x. हाँ वो समझा नहीं। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इसका log ले लो आप, इसकी वैल्यू x आती है ना. इसकी वैल्यू x क्यों आती है, अगर आप दोनों तरफ log ले लोगे, इसका log ले लो और इस x का log लोगे तो log x बनेगा. ये सुनो, इसको सॉल्व हाँ। करोगे तो क्या आएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log x बेस a इंटू ये log a रहेगा यहाँ पर. दिस विल हम्म। बी इक्वल टू log x. अब log x अपॉन log a को क्या लिख सकते, log x अपॉन a को क्या लिख सकते हो, log x बेस a को, log x अपॉन log a, ये इंटू log a है, दिस इज इक्वल टू log x. a कट गया, log x इज इक्वल टू log x. ओके. तो दिस ऑलवेज रिमेंबर इज इक्वल टू x. हमारा क्या आया था लास्ट में, 5 की पावर log 5 ये आया था. तो a की पावर यानी कि बेस 5 की पावर log 5/2 base 5, दिस विल बी 5/2, इजंट इट? हाँ समझ गया सर। दो इजी क्वेश्चन तो यही दिख गए सीधा सीधा. ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो लॉग एक स्कोरिंग चैप्टर है, एक लॉग का क्वेश्चन ये भी आया है आपका, ठीक है. देन आपका और कोई लॉग का क्वेश्चन आया तो देख लो. अच्छा, ये 2024 का पेपर है शायद, है ना? 25 में अगेन लॉग का क्वेश्चन आया होगा कोई. ठीक है, तो उसको भी आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन है,
if log x square minus 1 base 3, log 2x square plus 1 base 3, log 6x square plus 3 base 3 are first three terms of an arithmetic progression AP. अगर कोई तीन चीजें ए बी सी एपी में होती हैं तो क्या कह सकते हैं उनके बारे में? If three things A, B, C are in AP, what can you say about them? How are they related to each other? Can we say 2B is equal to A plus C? आया ना? Double of the Yes, sir. middle term is equal to end of the extremes. So Yes, इसको sir. आप B मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो, अब लगा दो. ये 2 times this log is equal to log this plus log this. You can do it. Yes or no? जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो, if there are these three other terms of an AP, 2 times B. So 2 times log base 3 2x square plus 1, ऑब्वियसली मैं 2 टाइम्स b ले रहा हूँ, इज इक्वल टू a प्लस c. तो log 3 आई मीन log बेस 3 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log बेस 3 6x स्क्वायर प्लस 3. यस और नो? Yes, sir. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इस 2 को चाहो तो आप इसके ऊपर पहुंचा दो. ठीक है, log बेस 3 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड log a प्लस log b आ रहा है एट सेम बेस. तो कैन आई से दैट log 3 लिख करके हम अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और 6x स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यस और नो? log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. नाउ सी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अ log बेस 3 एक्सप्रेशन, ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो यू हैव अ log बेस 3 एक्सप्रेशन. अगर दोनों लॉग्स का बेस 3 है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो इनके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी बराबर होना चाहिए. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप इसको बराबर कर लो. 2x प्लस 1 सॉरी 2x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 3 है ना? हाँ. नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1. दिस विल बी इक्वल टू 6x की पावर 4. देन आपका आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, माइनस 3. तो दिस बिकम्स 2x की पावर 4 एंड देन माइनस 7x स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व. अब ये पावर 4 की इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर को t ले लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो कैन यू राइट 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इक्वल टू 0? येस और नो? इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, इजंट इट? Yes, ये sir. याद रखना कि एक्स स्क्वायर को टी लिया हुआ है, ताकि हम 4, ये 4 डिग्री वाली इक्वेशन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी लिख दिया. तो एक्स स्क्वायर को टी लिखेंगे तो एक्स की पावर 4 को टी स्क्वायर लिख देंगे. नाउ यू जस्ट फैक्टराइज इट. क्या आएगा? 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज इट. 2t t माइनस 4 फिर प्लस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टराइज करके आया 2t प्लस 1 इंटू t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. t की दो वैल्यूज आई, माइनस हाफ और 4. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब t क्या है? माइनस हाफ या फिर 4. तो t आपने लिया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर या तो माइनस हाफ आएगा और x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर या फिर 4 आएगा. एक्स स्क्वायर अगर माइनस हाफ है तो x क्या आएगा? रूट ऑफ माइनस हाफ. रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड. बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 2. प्लस प्लस माइनस माइनस 2, नॉट 2. वेरिएबल का स्क्वायर अगर किसी नंबर के बराबर है तो एक्स एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स क्या है? एक वेरिएबल, उसका स्क्वायर 4 है. तो एक्स की वैल्यू दोनों साइंस में आएगी, प्लस 2 भी और माइनस 2 भी, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4. अगर कोई आपसे सिंपल पूछे कि रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो आप 2 ही बोलोगे. लेकिन आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स क्या होगा, तब आप दोनों केसेस लोगे प्लस माइनस 2. तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2. इतना सबको क्लियर है, इजंट इट? Yes, sir. सॉरी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे मिला एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब आपसे वो पूछ रहा है, ये आपके पहले 3 टर्म्स हैं. ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे? प्लस माइनस 2 डाल के रख लो. अगर आप एक्स को प्लस माइनस 2 डालोगे, दोनों प्लस माइनस 2, तो कितना आएगा? लॉग बेस 3, और अंदर 2 स्क्वायर माइनस 1 करोगे तब भी 3, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तब भी 3. इजंट इट?
यहाँ पे log बेस 3, यहाँ पे +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, 2 × 4 8, 8 + 1 9, ये सुनो। यहाँ पे 6x², तो 6 × -2 का स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, तो 6 × 4 24, 24 + 3 27, तो log बेस 3 27। log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी बताओ? log 3 बेस 3 की वैल्यू, log 3 बेस 3 कैन बी रिटन 1। एज log 3 बाई 1 log 3 दैट। तो कभी भी log का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 1। log 9 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी? 2 9 को लिखोगे 3² 2 आएगा आगे, log 3 बेस 3 2 बन जाएगा। 27 को लिख सकते हो 3 3³ 3 तो 3 आ जाएगा। तो आपकी पहली एपी के जो 3 टर्म्स हैं वो क्या है? 1 2 3। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हो एपी के? यस। 4 5 6 1 का डिफरेंस है, इनका सम चाहिए उसे। 6 5 11 11 4 15, 15 इज द आंसर। क्लियर? यस और नो? यस सर। दिस इज द लेवल ऑफ PYQs दैट यू माइट गेट इन इंदौर। इससे थोड़े डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, बट इफ़ यू आर समबडी जिसको प्रॉपर्टी पता है, सब कुछ पता है, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो भाई वो फिर सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है? सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो इसके आगे अगर आप जाते हो लॉग में, तो जैसे हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है जो शायद इस बार बहुत हाई चांसेस आने के, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल इन 1/20 की पावर 37, और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या निकाला? हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ लॉग वैल्यू, इजंट इट? अभी आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर रहे थे ना? अब क्या पूछा है आपसे? अब वो कह रहा है कि 1/20 की पावर 37 की जब वैल्यू कैलकुलेट होगी तो ये नंबर कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना, 0.00000000, बहुत सारे जीरो आएंगे ऐसे करके, है ना? और लास्ट में जाकर के कुछ नॉन जीरो नंबर आएंगे, तब ये नंबर खत्म होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे ही होगा। Yes, sir. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज 1 को डिवाइड कर रहे हो आप, छोटे से नंबर को डिवाइड कर रहे हो 20 की पावर 37 से। 20 की पावर 37 इज अ ह्यूज नंबर। तो जब हम किसी छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऐसी ही आती है वैल्यू। जैसे अगर आप 1 को इससे डिवाइड करोगे 10,000 से तो कितनी आती है? 0.0001, है ना? तो जितना हाँ बड़ा नंबर नीचे होगा उतना बड़ा, उतने ज्यादा डेसिमल आते हैं। वो बोल क्या रहा है? कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इमीजिएटली आफ्टर डेसिमल। ये सब कॉन्जिक्यूटिव जीरोस ही तो हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं। जैसे यहाँ भी 1/10,000 निकाल रहे हो तो पॉइंट ये आ रहा है। तो पॉइंट डेसिमल के बाद कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं? यहाँ पे 3 हैं। ऐसा नो? यस नो? यस। यस सर। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, कोई एक नॉन जीरो डिजिट आगे, मान लो इसका सॉल्व करते करते आपका कुछ ऐसा आया 5 6 3 2, ऐसे 5 ऐसे आया लास्ट में, मान लो ऐसे ही कुछ आएगा। तो इस डेसिमल के बाद कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आएंगे बहुत सारे, उसके बाद कुछ नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी, तो आपको इनका नंबर काउंट करना है। इसके लिए भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे आप अभी नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे थे ना यहाँ पे, वैसे ही इसमें भी लॉग करना पड़ता है। लेकिन इसमें दो केसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है? अगर आपको कभी किसी फ्रैक्शन में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आफ्टर डेसिमल काउंट करना है, तो आप सिंपली उस नंबर का लॉग ले लोगे, ठीक है? उस नंबर का लॉग। आपके पास क्या नंबर है? आपके पास नंबर है 1/20 की पावर 37। क्या 1/20 की पावर 37 को, क्या 1/20 की पावर 37 को 20 की पावर -37 लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं ना? यस। तो मैं इसे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 20 की पावर -37। लॉग क्या करता है? पावर को आगे खींच लेता है, तो कितना आएगा? -37 इंटू log 20। यस और नो? तो -37 इंटू log 20 की वैल्यू कैसे निकालोगे? log 10 इंटू 2। आया ना? तो -37 इंटू log 10 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी? log 10 प्लस log 2। log 10 होता है 1, log 2 होता है 0.301। तो दैट सिंपली मीन्स -37 इंटू 1.301। वैल्यू निकालो जरा, -37 इंटू 1.3 की।
एनीवन? -37 × 1.301 की वैल्यू क्या आ रही है? समथिंग अराउंड 0.0037। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। थर्टी नहीं, सेवन इंटू माइनस वन पॉइंट थ्री फोर्टी जीरो एट पॉइंट माइनस माइनस फोर्टी फोर्टी एट एट पॉइंट पॉइंट वन सम थ्री सेवन ठीक है, -48 पॉइंट समथिंग, यस और नो? ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे, कहाँ गया वो, 1/10,000 में कैलकुलेट करके बताओ, तो 1/10,000 को क्या लिख सकते हो? 1/10⁴। और कैन यू ऑल्सो राइट इट लाइक 10⁻⁻⁴? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ कैसा नो? तो अगर आपको 10⁻⁻⁴ यानी कि 1/10⁴ में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आफ्टर डेसिमल काउंट करने हैं, आप क्या लोगे? इस नंबर का लॉग ले लोगे। तो 10⁻⁻⁴ का लॉग क्या आएगा? -4 × log 10। log 10 होता है 1, तो -4 × 1, दैट मीन्स -4, यस और नो? अब जो ये माइनस होता है ना, आपका यहाँ क्या आ रहा है? लॉग का वैल्यू लास्ट में माइनस में आ रहा है। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस इंडिकेट करता है कि जो आपका नंबर जिसका आप लॉग निकाल रहे थे, इट वाज लेस देन 1, दिस नंबर इज लेस देन 1, यस और नो? 0.0001 लेस देन 1 है। ये लेस देन 1 है ना नंबर? Yes, sir. तो नेगेटिव जो है यहाँ पे, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो नंबर है जिसका लॉग आपने निकाला है वो नेगेटिव है। लेकिन ये जो 48 है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आफ्टर डेसिमल। और वैसे ही यहाँ भी 10⁻⁻⁴ में भी आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स द नंबर जिसका लॉग आप कैलकुलेट कर रहे थे वो लेस देन 1 है। ऑब्वियसली 10⁻⁻⁴ जो है वो लेस देन 1 है। और 4 क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आफ्टर डेसिमल। तो इसका मतलब मेरे पॉइंट के बाद 4 जीरो होने चाहिए। -4 का मतलब 4 जीरो होने चाहिए पॉइंट के बाद। आपको कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, यस और नो? हाँ या ना? Yes. हाँ मैंने दो केसेस लिए हैं, एक केस में मैं इस नंबर का लॉग कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक केस में मैं इस नंबर का लॉग कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस नंबर का लॉग मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, इस नंबर का लॉग मैंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल निकालने हैं, आप सीधा सीधा उस नंबर का लॉग निकाल दोगे। तो जो नंबर दिया था एज इट इज उसका लॉग निकाला, -48 पॉइंट समथिंग आया। वैसे ही 1/10,000 का लॉग निकाला तो -4 आया। अब मैं, मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन में वो 48 ही होगा कि 48 जीरोस होंगे आफ्टर डेसिमल। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा आंसर आ तो -4 रहा है, -4 का मतलब माइनस है फॉर लेस देन 1, लेकिन जो 4 है वो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बता रहा है। तो आंसर, मेरा फॉर्मूला जो है वो मुझे 4 आंसर लिखने को कह रहा है। बट मेरा एक्चुअली अगर मैं 1/10,000 को सॉल्व करता हूँ तो .0001 आ रहा है, ऐसा नो, जिसमें 3 ही कॉन्जिक्यूटिव जीरो दिख रहे हैं आफ्टर डेसिमल, यस और नो? ऐसा Yes, क्यों sir. हो रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पॉइंट जहां पे ज्यादातर बच्चे इस कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, मतलब, और नहीं करते उतना डेप्थ में। अब आपको एक चीज ध्यान में रख लेनी है कि जब भी आपका जब भी दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, इनका ध्यान देना। आपका जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, इट्स अ डेसिमल नंबर, यस और नो? डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। डेसिमल फॉर्म मतलब इसमें 48 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, यस और नो? आ रहा है लॉग निकाल करके। द लॉग वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 48 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट मीन्स इट इज इन डेसिमल फॉर्म, यस और नो? Yes, sir. बट जब आपने इस नंबर का लॉग निकाला तो ये क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, इंटीजर वैल्यू, यस और नो? हाँ या ना? अब केसेस में फर्क लगा आपको कि क्या दिख रहा है आपको? एक नंबर का लॉग लेने में आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर मिल रहा है, दूसरे नंबर का लॉग लेकर के आपको इंटीजर वैल्यू में मिल रहा है आंसर। जब भी इंटीजर वैल्यू मिल रही हो तो आप उसमें +1 कर दोगे। तो -4 में आप +1 करोगे तो कितना आएगा? -3। एंड -3 का जो माइनस है, दैट इंडिकेट्स कि नंबर लेस देन 1 है, बट नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आपके 3 होंगे। लेकिन अगर आपका नंबर डेसिमल फॉर्म में है, तो जो डेसिमल फॉर्म में आपका पार्ट आ रहा है इंटीजर वाला 48, वही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये दोनों केसेस सबको क्लियर हुए? क्या ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? अब मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज इसको यहाँ पे काट दो आप, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन होता 1/10
40 की पावर 37, तो क्या करते सीधा ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा ले लो 40 की पावर 37 का लॉग। 40 की पावर 37 को लिख सकते हैं 40 की पावर -37 है ना इसको, तो लॉग यस ऑफ सर। 40 की पावर -37 को क्या कर सकते हो, -37 log 40। -37 ऐसे ही रहेगा, log 40 को क्या लिख सकते हो, 4 × 10। log 4 × 10 इज log 4 + log 10। log 4 क्या तो होता है? 2 की पावर 2 × 10, तो 10 तो 1 हो जाएगा। राइट, तो ये आ जाएगा 1.602। यस और नो? आई होप log 40 तो सब निकाल ही लोगे यार। 4 × 10, log A × B इज log 4 + log 10। log 10 आपका 1 होता है, log 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर, तो 2 log 2, 2 × 0.301 इज 0.602, 1.602। इसकी वैल्यू निकालो जरा, बताओ कितनी आ रही है, -37 × 1.602 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। -59 पॉइंट। पक्का -59 पॉइंट समथिंग? या हाँ सर, 1.6 ही -50। तो करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका आंसर किस फॉर्मेट में है, डेसिमल या नॉन डेसिमल? डेसिमल। डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में है, तो सीधा आंसर क्या डिक्लेयर हो जाएगा, 59 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ इसकी बजाय कुछ और होता, जैसे अ, जैसे 1/10 की पावर 8 होता है ऐसे, तो आप क्या करते, 10 की पावर -8 करते, इसका लॉग लेते, जो कि -8 आता। यहाँ आंसर क्या है आपका, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में आपको 1 ऐड कर देना है, तो -7 आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 7। ठीक है, कर लोगे ये चीज? दिस इज व्हाट दे आस्क यू इन लॉग्स, दिस इज हाउ, आई मीन दिस कुड बी द डिफिकल्टी ऑफ लॉग क्वेश्चंस। ठीक है, और भी तरीके हैं, देखो लॉग क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, जिनमें से लास्ट कंसेप्ट मैं आज के लिए पढ़ा रहा हूँ। आई टेक 5 more minutes। ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास। दैट इज जो लॉग होता है ना, ये जो लॉग होता है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है जो लॉग होता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर 3 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1000 ना? ये सुनो, यही बोलोगे। यस सर। अगर मैं दोनों तरफ आपसे बोलूं कि लॉग लो, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, 3 × log 10 लिख सकते हो इसको। ठीक है, और बेसिकली ये भी एक तरीके से आपका क्या है, 10 क्यूब ही है, तो एक तरीके से LHS RHS के बराबर है आपका पहले से। ठीक है, लॉग में एक्सपोनेंट्स का यूज कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, कि कभी अगर ऐसा लिखा हो, log ऑफ A बेस B इज इक्वल टू एक्स, एंड अगर आपको लॉग रिमूव करना है, यू डोंट वांट लॉग, आपको लॉग हटा देना है, और लॉग को आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा याद रखना, दिस आर्ग्यूमेंट A विल बी इक्वल टू बेस की पावर नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, तो बेस B की पावर नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। ये याद रहेगा सबको कि अगर आपको किसी लॉग फंक्शन में से लॉग को ही गायब करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपका लॉग A लिखा हुआ है, बेस B लिखा हुआ है, और यहाँ x लिखा हुआ है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा हो जाएगा बेस की पावर नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। यस और नो? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि log ऑफ 3 अगर 10 है, ठीक है, सॉरी log ऑफ x अगर 10 है, ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ लेता हूं अगर मैं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, x, log का कुछ नहीं लिखा, बेस तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 10, तो दिस आर्ग्यूमेंट x विल बी इक्वल टू बेस की पावर नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, तो 10 की 10 पावर नहीं 10। होगा। ठीक है, x विल बी 10 की पावर 10। ओके, यस और नो? यस सर। सर, हाँ, जो आपने पिछला वाला कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्जिक्यूटिव जीरोस वाला, हाँ, जब डिनोमिनेटर में रहता है, अगर नंबर डायरेक्टली ऐसा होता 20 raised to 37, तो वो फॉर्मूला फिर भी अप्लाई हो सकता है क्या? 20 की पावर 37। हाँ, उसमें अगर बोलेंगे कि ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। ये आपका ऐसे निकलेगा, फिर ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है ना,
दिस इज अ हाँ नंबर ग्रेटर देन 1। इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, log n प्लस 1 का इंटीजर पार्ट, जो हम पहले नहीं कर रहे थे, ये वाला ग्रेटर, हाँ ये हाँ पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब ये आपका ग्रेटर देन 1 है ना वैल्यू log की। हाँ। तो ग्रेटर देन 1 है अगर आपका नंबर, ये नंबर आपका जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने पूछेगा हमेशा आपसे, वो ऐसे में कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है वो आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपका नंबर ही बहुत छोटा है 1 से, जैसे ये, तो इसमें वो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस पूछेगा आपसे। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, ये याद रखना बस। हाँ सर, बस अपन उसको ऐसे बेसिकली ये समझ सकते हैं ना कि log 10 अपना 1 होता है, तो हाँ मैं 1 0 है तो बस आप ऐसे ही समझ लो कि +1 हो रहा है सर। हाँ, दैट्स इट। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपसे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है और बोल रहा है log का बेस 4 है, एक इक्वेशन है इक्वल टू 3। आपको एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले log से थोड़ा सा log को हटाना पड़ेगा। अगर आपको log हटाना है तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a है, ये आपका 4 है। तो आपका आर्ग्यूमेंट a हमेशा क्या होता है, बेस की पावर नंबर ऑन राइट हैंड साइड। तो ये आपका a हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, बेस है 4, उसकी पावर नंबर है राइट हैंड साइड में 3, तो a क्या है आपका 3x² प्लस 44x, इट विल बी इक्वल टू 4 क्यूब। और 3x² प्लस 44x माइनस 64 विल बी 0, यस और नो, आया ना। यस सर। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। इसकी क्या वैल्यूज आएंगी देखो, 3x² प्लस 48x माइनस 4x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 3x x प्लस 16 माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आएगी 4/3, एक आएगी -16। बताओ x 4/3 या -16 में से बड़ा कौन है, 4/3। हाँ। एंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/3। ओके। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराना है, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। इट इज दिस क्वेश्चन, ये दिख रहा है सबको। यस सर। क्वेश्चन इज 2 × log x - 1। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसे तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज दैट x कैन टेक। अब यहाँ log 16 लिखा हुआ है, यहाँ log के आगे एक नंबर पड़ा है बेमतलब में, इस नंबर को ऊपर पहुंचा दो पहले तो। कितना आएगा, x - 1² विल बी इक्वल टू log 16। दो log टर्म्स हैं, बराबर भी हैं, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बराबर होंगे, यानी कि x - 1 का स्क्वायर 16 के बराबर होना चाहिए। अब x - 1 क्या हो जाएगा, √16। मैंने बताया था कि वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू सम नंबर हो तो वैल्यूज क्या लेते हैं, दोनों वैल्यूज लेंगे, +4 एंड -4 दोनों लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको, पहले बताओ, हाँ या ना। Yes, sir. तो x - 1 का स्क्वायर अगर 16 है तो x - 1 प्लस -4 आएगा, तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी पॉसिबल, या तो x - 1 4 होगा, या तो x - 1 -4 होगा। यानी कि x की एक वैल्यू आएगी 5, या x की एक वैल्यू आएगी -3। यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, 5 एंड -3। अब यहाँ जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधा सम कर देते हैं 5 और -3 का, दैट विल बी 2। बट दिस इज रॉन्ग। वाई, x की दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपको अपने लॉग एक्सप्रेशन में पुट करके चेक करना होता है। क्या 5 पुट करेंगे तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, बिकॉज 5 - 1 क्या है 4। तो आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है 4। लेकिन जैसे ही आप x को -3 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ x को -3 डाल -4। दोगे तो आपको मिलेगा log ऑफ -4। अब बच्चे यहाँ और दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो 2 log है ना, तो 2 यहाँ चले जाएगा, तो log फिर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में कुछ भी करके नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉग का आर्ग्यूमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ एक वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, दैट बी -3, बिकॉज ये लॉग के अंदर जाते ही लॉग के डोमेन से बाहर चली जा रही है, यानी कि लॉग काम नहीं करेगा -3 पे। एंड दैट इज द रीजन, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी एक्स की 5, एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, ना कि -2, सॉरी 2। इसका आंसर 5 होगा। ये क्लियर है सबको। और यही क्वेश्चन है जो फंसाते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, दे विल ट्रैप यू। सर ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके बुक्स में है क्या? ये क्वेश्चन बुक्स में भी हैं, डैशबोर्ड में है, क्लासेस, ये एक्चुअल हमारी नहीं, आपने जो आई क्वांटा की अपने खुद के बुक्स बनाए उसमें है ऐसे?
बुक्स में भी क्वेश्चन है, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। बुक्स ना ज्यादा वैरायटी कवर करती हैं, क्लास में ना वो क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं हम लोग जो एग्जाम रेलेवेंट बहुत हाईली होते हैं, जहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे गलती कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक्स के अंदर भी है। सेकंड चीज, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने वाला, ये सेम क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा था अभी 2024-25 के, जो भी एपी वाला क्वेश्चन कराया आपको थोड़ी देर पहले। यस और नो? यस और नो? जैसे ये क्वेश्चन करो आप, ये भी क्वेश्चन फंसाने वाला है। दिस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ओके। व्हाट डू यू सी हियर? देयर आर थ्री क्वांटिटीज, लॉग लॉग लॉग, दे आर इन एपी। ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो क्या अरे होना चाहिए? कर सकते टू हैं बी। ना, तो यस। अरिथमेटिक मीन्स हो जाएगा ना। हाँ, सो टू बी विल बी ए प्लस सी, तो टू टाइम्स दिस लॉग बेस थ्री, व्हाट इज बी, या मिडिल टर्म, टू की पावर एक्स माइनस फाइव विल बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए इज व्हाट, लॉग टू बेस थ्री प्लस लॉग ऑफ टू की पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू बेस थ्री। यस और नो? इतना क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब आपको ये टू यहाँ पहुँचाना पड़ेगा ऊपर, बिकॉज ये बेमतलब का लॉग के आगे लगा हुआ है। तो लॉग बेस थ्री टू की पावर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, बेसिस आर सेम, तो लॉग बेस थ्री हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टू इंटू टू की पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो उसको मैं टू इंटू टू की पावर एक्स ही लिख देता हूँ। माइनस ये टू होगा, सेवन बाई टू से मल्टीप्लाई, तो सेवन आ जाएगा। यस और नो? बिकॉज लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now on both the sides I have a log 3 log 3. If both are same at base 3, so their argument should be same. So can I write 2 की पावर x minus 5 का square is equal to 2 into 2 की पावर x minus 7. But again I'm stuck because 2 की पावर x का स्क्वायर करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, 2 की पावर x को t ले लेते हैं। 2 की पावर x को t ले लोगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर t minus 5 का स्क्वायर एंड 2 into t minus 7. If you solve it further, t square minus 10t plus 25 is equal to 2t minus 7. Solve it further. T square minus 12t plus 32 equal to 0. T will have two values, 4 and 8. Yes or no? Clear? If t has two values, 4 and 8, 2 की power x will be 4 as well, 2 की power x will be 8 as well. If 2 की power x is 4, x will be 2. If 2 की power x is 8, x will be 3. Yes or no? Yes, sir. Two values of x are there. बट अगेन, जब भी दो वैल्यूज आई एक्स के लॉग के अंदर, तो प्लीज उन दोनों को चेक कर लेना। इस टू को अगर आप पुट करोगे तो कहाँ कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ और यहाँ। थ्री को भी यहाँ और यहाँ। अगर आप एक्स को टू पुट करते हो, व्हाट यू गेट, टू स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 5। क्या मिला अंदर आर्ग्यूमेंट में, नेगेटिव -1। यस और नो? हाँ या ना? Yes. तो टू डिस्कार्ड हो जाएगा आपका। सिंपल, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी 3, बिकॉज इफ यू पुट 3 हियर, तो 2 क्यूब माइनस 3 इज 8 माइनस 5 विच इज 3, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। 2 क्यूब माइनस 7 बाई 2, दैट मीन्स 8 माइनस 3.5, 4.5 विच इज पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। 3 के लिए सारे लॉग्स के आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, लेकिन 2 के लिए एक लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे लॉग नहीं चलेगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। दैट्स इट विद लॉगरिदम्स। ठीक है, आई होप लॉग समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आई, कहाँ पे केसेस आ सकते हैं, आईपीमेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह सब आपको क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। इतना अगर आपको आता है लॉग में, कंसेप्चुअली मुझे नहीं लगता आप इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, ओके। यू विल नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दिस इन लॉग्स। यस सर। दैट्स इट, ठीक है, पढ़ते रहो। बाकी इफ यू वांट टू एनरोल फॉर iconda क्लासेस, यू कैन विजिट द वेबसाइट, ओके। सो वी हैव सिमिलर क्वेश्चंस इन द बुक्स एज वेल, डैशबोर्ड एज वेल। अगर किसी को iconda का डैशबोर्ड वगैरह देखना है, सो आई जस्ट शो देम what it looks like. Yes. Okay, can you see my screen? यस सर। Yes, sir. Okay, so basically what happens, this is the website. You simply can go to IPMAT courses to enroll. There are discounts for students who have good percentage in class 10, 11, 12. एंड अभी जो का 26 का कोर्स है 27,000 का है। जो 27 का कोर्स है, अगर कोई 27 का स्टूडेंट है यहाँ पे, उनके लिए कोर्सेज ऑफ 40,000। इफ़ यू हैव एनी अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है 10 12 में, तो आप शेयर कर देना अभी। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कम फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से ही आओगे सारे लोग।
अगर आप एनरोल कर लेते हो सपोज, तो आपका एक अकाउंट बन जाता है। सो वॉट एवर ईमेल आईडी यू लॉग इन थ्रू, आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सिंपली लॉग इन थ्रू द ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपका एक्सेस है, and you will be logged in. On the top right corner you will see a profile picture button. Click on that, you will see the dashboard option. Dashboard के अंदर आपका एक मॉड्यूल होता है IPMAT BBA का, इसके अंदर चले जाओ। एंड देन यू हैव बेसिक नॉन मैथ क्वांट वीडियोस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनकी 10th के बाद मैथ छूट गई थी। सो जनरली लोग आपको एनसीईआरटी करने बोलते हैं 8 to 10th की, टू बिल्ड योर बेसिक मैथ, तो वो आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। इफ़ यू जस्ट वॉच दिस मच इन नंबर्स, यू आर डन विद बेसिक्स ऑफ नंबर्स। अलजेब्रा में ये आपका अलजेब्रा क्लियर कर देगा बेसिक, एंड दिस विल क्लियर योर अरिथमेटिक पार्ट। तो बेसिकली तीन चीज़ें ही आपको मैथ्स के अंदर सब चीज़ें समझने के लिए आनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ नंबर्स, अलजेब्रा, अरिथमेटिक। ये नॉन मैथ मॉड्यूल उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद मैथ्स छोड़ चुके हैं, अगर बाकियों को भी करना है देख सकते हो। कंसेप्चुअल वीडियोस में क्या होता है, काफ़ी सारा रिकॉर्डेड कंसेप्ट होता है जो आप देख सकते हो। नाउ दीज आर स्मॉल वीडियोस, ओके, दीज आर नॉट एक एक घंटे की वीडियोस। ये मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियोस हैं जिनमें आपको क्रिस्पली कंसेप्ट समझाया हुआ है। फिर वो नंबर्स बेसिक्स का होगा पहले, फिर डिविजिबिलिटी होगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम्स होंगे, एचसीएफ एलसीएम है, ठीक है, फैक्टोरियल्स वगैरह भी इसी के अंदर है, ठीक है। एंड देन परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, डिसऑनेस्ट सेलर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, averages, ratios, whatever comes in arithmetic, okay, then we have algebra, then we have geometry, then we have your higher math का पोर्शन, ठीक है। ये सारी वीडियोस हैं बेसिकली आपकी, ओके। ये कंसेप्चुअल वीडियोस हैं। कंसेप्चुअल वीडियोस के बाद आपका एक फोल्डर रहता है जिसमें क्वांट्स, क्वेश्चंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। सो हियर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर आप में से सर कोई मुझे ऑलरेडी, बुक्स खरीदनी थी पर वो उधर जाके समझ नहीं रहा है हाँ मैं उधर। आपको समझा देता हूँ बुक्स का, ठीक है। सो देन यू ऑल्सो हैव टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स इन वीआरसी, इन क्वांट्स एंड इन एलआरडीआई, ओके। देन यू ऑल्सो हैव सम बेसिक एलआरडीआई बिल्डर्स, कि एलआरडीआई के भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग डीआई के, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये आ गया। देन वी सर कम एंड टू इफ योर, सर 1 सेकेंड, इफ या, आई ऑर्डर योर बुक्स टुडे सो कितना दिन लगेगा उसको 15 आने डेज के लिए? कम से कम लग जाता है। देखो अभी ना हमारा स्टॉक जस्ट खत्म हुआ है, तो हमने अभी नया एडिशन बनाया है, ठीक है, एडिशन 2। एडिशन 2 में क्या है कि डीआई का पोर्शन अपडेट हुआ है, एलआर का पोर्शन थोड़ा सा अपडेट हुआ है, क्वांट का पोर्शन अपडेट हुआ है, ठीक है। वर्बल तो ठीक ही थी पहले से, लेकिन क्वांट में थोड़ा क्वेश्चंस किसी किसी टॉपिक में कम थे, तो वो अपग्रेड हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आपका क्या है, सर इज इट अवेलेबल इन लोकल मार्केट? नो, लोकल मार्केट में नहीं मिलती है, ठीक है। अभी उतना हमने बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लास्ट ईयर हमने बुक्स बनाई हैं, तो ये हमारा एडिशन 2 है। एडिशन 1 में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, प्रिंटिंग ओके। मिस्टेक्स वगैरह हैं, बट 2 में वो सब रिमूव हो गई हैं, ठीक है। एंड 2 में मैंने थोड़ा सा अपग्रेडेड जो डीआई आपका इंदौर के अंदर जो आता है वो भी डाल दिया है। तो बुक्स अगर आपको लेनी है, यहीं पे बुक्स का एक प्रोडक्ट होगा, ये है, लगभग 15 डेज लग जाते हैं, ठीक है, बुक्स आने में आपके, ओके। हाँ सर। यू कैन परचेज बुक्स फ्रॉम हियर, ओके। बाकी बुक्स कुछ ऐसी दिखती हैं, अगर आपको, वैसे हम बुक्स का पीडीएफ भी आपको दे देते हैं, पीडीएफ, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है, एक सेकेंड ना। सो पीडीएफ रीडेबल होगा लेकिन आपका, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, सब कुछ होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपकी बुक होती कैसी है। ओके, 1 सेकेंड, मैं आपको बुक थोड़ा सा अपडेटेड अपडेटेड बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग कौन सा बुक यूज कर रहे हो अभी? जनरली तो देखो, हाँ जनरली तो स्टूडेंट्स वही अरुण शर्मा वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर किसी के पास अपनी कोई और कोचिंग है तो उसकी बुक्स होंगी, है ना। ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन, राइट। यस सर। तो सपोज दिस इज योर से नंबर्स इन अरिथमेटिक का बुक, ओके। सो ये सारे कंसेप्ट होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एचसीएफ एलसीएम, सब कुछ इसके अंदर आपका अरिथमेटिक एंड नंबर्स पूरा कवर्ड है, ठीक है। सो देन यू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, फंडामेंटल्स, थ्योरी, एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट, ओके, डेफिनेशंस, सर ये फाइन। सब पीडीएफ ग्रुप में भेज दो ना। ये पीडीएफ बुक्स तो यार मेरी नहीं है बुक्स। सो द थिंग इज कि बुक्स का पीडीएफ नहीं दे सकते हैं ना, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। यू कैन ऑर्डर द बुक्स, ओके, इट्स बेटर कि आप यहाँ से पढ़ो, पीडीएफ उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है।
ठीक है, those who want to enroll, they can let me know if you have any queries. I'm the admin of the WhatsApp groups. You can ask there, or mostly you'll receive a call from iQuanta if you registered for the demo. So you can accordingly show your intent for the course, okay? और एक और चीज़ है, यू कैन सिंपली टाइप iQuanta फ्री स्टडी मटेरियल ऑन गूगल एंड यू विल गेट दिस पेज। जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं तो वो यहाँ पे जाकर के हमारी डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? डेली क्विज में बेसिकली क्या होता है, डेली आपको कुछ अच्छे आईपी मैट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने को। एंड this is what it looks like, okay? Just let me show my screen. So this is what it looks like, okay, your daily test. So this is the page iQuanta IPMAT फ्री स्टडी मटेरियल। आपको टाइप करना है गूगल पे, आपको पहला पेज जो दिखेगा iQuanta का, उसी पे जाकर के आप अपनी क्विज स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्री है, ठीक है, सबके लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज योर टेस्ट, ठीक है? वांट LR के क्वेश्चन, VA के क्वेश्चन, एंड देन यू सबमिट इट, यू विल ऑल्सो गेट अ रिपोर्ट, ओके? यू विल ऑल्सो गेट सोल्यूशन, फाइन। सर नॉर्मली सारे लोग कौन से बुक यूज करते हैं, मतलब मैं अभी चालू करने अरुण के लिए गया तो। अरुण शर्मा यूज करते हैं, अरुण शर्मा का लेवल 1 2, ठीक है? अरुण शर्मा एक कैट की बुक है, अरुण हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट क्वांट्स बाय अरुण शर्मा। एक बुक है, आप एक काम कीजिए, आपको सारी बुक्स का नाम जानना है, आप यूट्यूब पे जाकर के बेस्ट आईपी मैट बुक सर्च करना, तो एक iQuanta का वीडियो आपको मिलेगा। मैंने उसमें ये भी बताया है कि अगर आप ये बुक यूज़ कर रहे हो तो उसमें से कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है? कई लोग बुक्स तो ले लेते ओके। हैं बट उसमें से क्या पढ़ना है इफेक्टिवली, ताकि टाइम भी बचे और हम वो एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़े जो एग्जाम में नहीं आती है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लेना। आई जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। इट इज दिस वीडियो, ओके? यू कैन सिंपली सर्च बेस्ट आईपी मैट बुक्स, तो आपको मिल जाएगा ऊपर ही, ठीक है? ओके, यस सर। बस सर, यस। जो iQuanta की मॉक टेस्ट सीरीज है बुक, हम्म। उसमें हम्म। अराउंड कितने मॉक टेस्ट हैं? उसमें है आपके लगभग, मैं आपको दिखा देता हूँ सब लोग मॉक्स। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। मॉक्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, देखो हम क्या क्या मॉक्स देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। You go to this page iQuanta.in/IPMAT mock test, click on start mock. So first of all you have all the past papers, okay, of इंदौर, रोहतक, जिपमैट, जो भी आपके अभी तक के पेपर्स हैं। देन यू हैव BB एग्जाम्स के मॉक्स, जैसे कि आपके सिम्बायोसिस, एनपैट, क्राइस्ट, जेवियर्स, IPUCT। अगर आप IPMAT के देते हो इंदौर, रोहतक, जिपमैट, अभी इसमें 21, 18 और 20 यानी कि टोटल लगभग ये 50-60 मॉक्स है, 60 मॉक्स। ये इस बार बढ़ेंगे, ठीक है? ये हो जाएंगे करीब 80+, तो 40 इंदौर के हो जाएंगे, समवेयर अराउंड 30 आपके रोहतक के हो जाएंगे, एंड समवेयर अराउंड 20 जिपमैट के रहेंगे, ठीक है? इनमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं इंदौर के मॉक्स में, रोहतक जिपमैट में वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है बट इंदौर में वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है? देन यू ऑल्सो हैव IIM बैंगलोर के मॉक्स जो होते हैं, ये इसी में इंक्लूडेड होता है। टॉपिक वाइज PYQs हैं, ये सबके लिए फ्री हैं, ठीक है? पास पेपर सबके लिए फ्री हैं, और टॉपिक वाइज PYQs इंदौर के 2019 से 25 के सारे क्वेश्चन, अगर आपको नंबर्स के एक साथ सॉल्व करने हैं, यू कैन स्टार्ट हियर। तो सपोज आपको आज अगर लॉगरिदम्स के सारे क्वेश्चन, आपने लॉगरिदम खत्म कर लिया है, सारे PYQs एक साथ करने हैं, यू कैन स्टार्ट दिस टेस्ट। 2019 से 25 के टॉपिक वाइज PYQs ऑफ क्वांट एज वेल, वर्बल एज वेल। रोहतक के टॉपिक वाइज PYQs इसमें है। अब रोहतक जो अपने पेपर रिलीज नहीं करता है, ठीक है, 2020 के बाद उसने पेपर रिलीज नहीं किए। ये आपके सेक्शनल्स हैं, ये बढ़ के अभी 20 हो जाएंगे इंदौर, रोहतक, ये इंदौर के सेक्शनल्स, ठीक है? यानी IIM कोझिकोड के पेपर हैं, ये भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी IIM बैंगलोर का पेपर भी आने वाला है, वो भी इसमें एडअप हो जाएगा, ठीक है? तो एंड सर रेस्ट बुक यू, कभी बाय करना चाहिए कितने दिन बाद मॉक टेस्ट का? देखो मैंने एक प्लान बनाया था, एक 240 डेज रोड मैप, अगर आपने देखा होगा, है ना? हाँ। इसमें मैंने आपको मॉक्स, मैंने इसको इस हिसाब से बनाया था कि एक बच्चा अगर शुरू कर रहा है ना, उसको ये नहीं पता लगता कि मुझे आज करना क्या चाहिए, तो मैंने एक तो ये आइडिया दे दिया था कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, जो होते रहता है उसको डन करते रहो। दूसरी चीज़, मैंने मॉक्स आपके यहाँ से शुरू करवाए थे, नवंबर से। नवंबर से आप क्या कर सकते हो, हर 4 दिन में एक मॉक दे सकते हो। जैसे आपने इंदौर फुल मॉक 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, आपको एनालिसिस कर लिया उसका कि कौन से क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं हुए, जो नहीं हुए उनका सोल्यूशन चेक कर लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया। देन आप दूसरे मॉक में गए, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर एक PYQ दे दिया, ताकि आपका सर PYQ भी साइमल्टेनियसली कवर होता रहे। सर फिर आपके ऑफलाइन बैच में कितने लोग हैं अभी? ऑफलाइन बैच का यार मुझे ज़्यादा नहीं पता। आई थिंक ऑफलाइन वी हैव अ गुड सेंटर इन जयपुर, वी हैव अ गुड सेंटर इन जमशेदपुर, और आई वुड से सूरत, सूरत में भी ठीक सेंटर है शायद। और उनका सिलेबस लगभग ज्यादा कंप्लीट हुआ है क्या? देखो हमारा जो सिलेबस है भी रिसेंट बैच में, वो 4-4 क्लासेस हो रखी हैं, ठीक है, सिर्फ। ये ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन में ओके। क्या होता है, ऑफलाइन का मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता ज़्यादा, ठीक है? आई मीन हम कंटेंट तो हम ही देते हैं ऑफलाइन वालों को, बट ऑनलाइन में ये होता है कि देखो, ऑनलाइन वी आर टीचिंग पैन इंडिया, ओके? सो पैन इंडिया में ये होता है कि टीचर्स थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं,
एंड यहाँ पे ये है कि थोड़ा सपोर्ट आपको ज़्यादा रहता है, ओके। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा और फ्री में पढ़ना है, यू कैन गो टू द iQuanta IP मैट चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, ओके। जैसे अभी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट शुरू की है, अरिथमेटिक की है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी वर्बल के पैसेजेस इसके अंदर हैं, ज्योमेट्री प्लेलिस्ट ये है, क्वांट्स की प्लेलिस्ट ये है, वर्बल की ये है, पास्ट पेपर की ये है, ठीक है। देन आप आगे जाओगे तो आपको वर्ड पर मिडीजी अगर किसी को ऐसे पढ़नी है तो ऐसे पढ़ लो, अदरवाइज ये थोड़े से वन शॉट्स भी हैं आपके, फार्मूला सीरीज भी है यहाँ पे, डेटा इंटरप्रिटेशन की पूरी प्लेलिस्ट है। देन क्वांट में अगर आपको अलजेब्रा पूरी पढ़नी है, यहाँ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। देन लॉट ऑफ प्लेलिस्ट यू कैन एक्सप्लोर। ऑफलाइन का आई डोंट हैव मच आइडिया, यू कैन सिंपली टाइप आई क्वांटा एंड द सिटी नेम, गूगल पे आपको उनका वो मिल जाएगा, ठीक है, कॉलिंग नंबर वगैरह, तो यू कैन रीच आउट टू देम। Yes. Offline is a bit costly, okay? Offline, there are a lot of other facilities, so it's bit costly. अदरवाइज आप ऑनलाइन ले सकते हो। तो देखो ऑनलाइन में बस ये फ़ायदा होता है कि आपके पास रहेंगी चीज़ें। और एक और चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स थोड़ा तेज़ जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक सेल्फ पेस्ड कोर्स भी है, ठीक है। तो इस सेल्फ पेस्ड कोर्स में हम क्या करते हैं कि सारे बच्चों को एक साथ ही पूरी रिकॉर्डिंग देते हैं पूरे सिलेबस की। अगर आप इसको अपने पेस पे करना चाहते हो तो नोबडी स्टॉप्स यू, ओके। एक दिन ये किया, एक दिन ये किया। सो जनरली बच्चे अभी इस शीट को देखते हैं 240 डेज वाली, दे नो कि उनको ये पढ़ना है HCF LCM, बट HCF LCM में क्या पढ़े कितना पढ़े है ना, दैट दे कैन डू फ्रॉम हियर इफ दे आर डूइंग दिस। सो प्रोबेबली दे कम हियर HCF LCM फैक्टोरियल में, यहाँ उनका ये कवर हो जाएगा और बाकी HCF LCM फैक्टोरियल की 2 क्लासेस आपकी ये खत्म हो गई। फिर में डिजिट्स एक्सिटी में ये हो गया, रिमाइंडर्स में ये हो गया, ऐसे करके यू कैन गो एट। सो दिस शीट इज लाइक कि सपोज यू गो टू दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके, यू क्लिक ऑन दिस, इट टेक्स यू लेक्चर डायरेक्टली, ओके। ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है आपका। यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर लेक्चर है जिसको आप ओपन करके यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो, ओके। इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। ये एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एनरोल किया उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि काफ़ी बच्चे ना थोड़ा फास्ट जाना चाहते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको लेना है तो iQuanta पे जाओ, और सेल्फ पेस्ड कोर्स है, इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है बेसिकली। तो यहाँ पे एक सेल्फ पेस्ड कोर्स का लिंक होगा, ये फास्ट जाने वालों के लिए है, तो ये है ना। ये थोड़ा सा जो लोग थोड़ा सा बैठ करके लंबा अभी से अपना करना चाहते हैं, खासकर ड्रॉपर्स वगैरह, है ना। तो इसमें आपके सारे लेक्चर्स होते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, इसमें आपको मॉक्स भी मिल जाते हैं, इसमें आपको PYQs मिल जाते हैं। ये जो पूरा डैशबोर्ड दिखाया है वो बस, इसमें लाइव लेक्चर्स नहीं होते हैं। एंड इस पर आपको तो डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ पेस्ड है। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, मतलब कि आपने बोला था कि अभी मॉक्स में और एड ऑन होगा, अभी 20 या 40 अराउंड के हाँ नंबर हाँ जाएगा। तो वो हाँ। पूछ रही थी वो कभी होगा, सो आई कैन ऑर्डर वो उसके वो हम अकॉर्डिंग ना। वो हम अभी करेंगे समवेयर अराउंड मे बी आफ्टर अ मंथ, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉक्स को थोड़ा बेटर बना रहा हूँ। लास्ट ईयर मॉक्स में भी कुछ इश्यूज थे, ठीक है, तो वो मैं सारे अभी बैठ करके हटा रहा हूँ मॉक्स के इश्यूज। जैसे कि एनालिसिस पार्ट में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, है ना। तो वंस आई एम डन विद दैट, प्रोबेबली विद इन अ मंथ विल स्टार्ट पुटिंग योर मॉक्स एज वेल, ओके। तो मान लो सर आपने सितंबर। बोला हम्म। कि नॉर्मल बैच में 40,000 रुपीज का है, तो जो सेल्फलेस बैच जो आपने बोला वो कितना डिस्काउंट है उसमें? उसमें यार आपका अगर 10 12 का परसेंटेज सही होता है तो आपको 25 तक मिल जाता है, ठीक है, सेल्फ बेस्ड। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, ओके ओके, ठीक हाँ है। हाँ। सेल्फ बेस्ड जैसे देखो, अगर आप जनरली जो 2 साल वाले होते हैं उनको तो मैं बोलता हूँ भाई लेक्चर्स वगैरह ले लो। जो जो 1 साल वाले बच्चे हैं, जैसे जनरली हम इनको देते हैं, जो जैसे बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस नहीं होता हमेशा, है ना, उनके लिए हो गया। सेकंड, वो लोग जो थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया हैं और वो लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो वो इससे पढ़ लेते हैं जिनका टाइम स्लॉट मैच नहीं कर रहा हमारे साथ, ठीक है। बाकी कोई अगर स्टूडेंट है जो थोड़ा सा ऐसे रूरल एरिया में रहता है और उसका इतना ज़्यादा इंटरनेट का इशू है वहाँ पे, तो हम ये उनको दे देते हैं वैसे। बाकी भाई ओपन टू एवरी वन है, मतलब अगर आपको थोड़ा तेज़ जाना है तो सपोज जैसे हमारी हफ्ते में 4 क्लास होती है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्लासेस। शायद जब तक एक हफ्ते में आप 4 क्लास करोगे तो सेल्फ फेज वाला बच्चा यहाँ पहुँच जाएगा। बस सेल्फ फेज में ऐसा होता है कि जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो वैसे तो देखो क्लियर हो जाते हैं मोस्टली। क्लासेस मैं जनरली ऐसे ही रखवाते हैं हम लोग कि डाउट्स ना ही आए, मतलब है ना। जैसे आज आपने सारे डाउट्स पूछ लिए तो शायद अब इसकी कोई रिकॉर्डिंग देखेगा अच्छी क्लास की, तो वो बाकी डाउट भी उसके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उतना कुछ इशू नहीं